Hello everyone, welcome to this session on BYJU'S Exam Prep. I hope all of you can hear me and see me also. जल्दी से बता देना if you are joining me live कि मैं दिखाई दे रहा हूँ कि नहीं, आवाज़ आ रही है कि नहीं. वैसे नहीं आ रही होगी तो वैसे भी कैसे बताओगे. But in case you can, let me know in the chat box. Now just to quickly give you a brief idea about these sessions. So we are doing these free sessions for CLAT 2024 aspirants or students. And these sessions are designed to give you a basic idea about the kind of passages you are going to get in critical reasoning and English. दोनों का ही काम एक सेशन में हो जाता है. वैसे फोकस तो हमारा critical reasoning पे रहेगा. And remember, critical reasoning is called logical reasoning in CLAT. So please don't get confused. Logical reasoning in CLAT is basically critical reasoning. And if you're good at critical reasoning, you will be good at English also. So you are basically killing two birds with one stone kind of situation. So make sure you work very hard on critical reasoning. Okay, let me see किसी ने join भी किया कि नहीं. अरे I can see already. Very good. Ankita, Saish, Krishna, good evening. Saish, slightly higher level, but you can stay. You can try. Okay. Now let me tell you, in today's session I'm going to, from the headlines probably you already have seen the thumbnail. I am going to talk about, I will not become a philosopher, don't worry, philosophy नहीं सिखाऊंगा, but I will take up a passage on philosophy to give you some idea about what is it that you guys can face when you take up CLAT. In fact, if you want to be a lawyer, you have to study philosophy also, right? You should be aware of philosophy. For example, basic ones like what exactly is capitalism and what is communism and how they are different, and what is exactly a socialist country. For example, our very own constitution says that India is a socialist country, right? Now if you do not know what is a socialist country, then how would you judge actions of companies and this government and find out whether it is in line with the principle of socialism or not? तो ये सारी चीज़ें खुद से आपको पता होनी चाहिए. सोशलिज्म किसे कहते हैं, कैपिटलिज्म क्या होता है, डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म क्या होता है, मार्क्स ने क्या बोला था, कांत किस लिए फेमस है, हेगल कौन थे, प्लेटो कौन है, सोक्रेटिस क्या बोल के गए, एरिस्टोटल की बात माननी चाहिए कि नहीं माननी चाहिए. तो फिलॉसफी काफ़ी ज़रूरी है. थोड़ी बोरिंग लगती है बट इतनी होती नहीं है एक्चुअली, लोग बोरिंग बना देते हैं. और पैसेजेस फिलॉसफी पे आ सकते हैं. इनफैक्ट इफ़ यू लुक एट द लास्ट 4 years ऑफ क्लैट पेपर्स, फिलॉसफी इज़ अ डोमिनेंट थीम. कुछ पैसेजेस एग्जैक्ट फिलॉसफी पे नहीं आते बट दे आर मोर लाइक based on philosophy. So you have to have a basic idea about philosophy. So this is why this session काफ़ी important है. If you're watching me after the session is over, तो लास्ट तक देखना. और 2x पे देख सकते हो, 1.5x पे देख सकते हो, 2x ज़्यादा हो जाएगा, 1.5x पे देख सकते हो, तो उससे टाइम बचेगा. बट उस टाइम को यूटिलाइज करना टू डू समथिंग बेटर उस टाइम में, और रील देख के टाइम पास नहीं करना, अदरवाइज तो फिर ऐसे ही देख लो, है ना. सो शुरू करते हैं. लेट मी सी इफ एनीबडी एल्स हैज जॉइंड. यस, आई कैन सी राजेंद्र कौर आल्सो. राजेंद्र, वेलकम गाइस. सो बिफोर आई मूव ऑन, आई थिंक आई नीड टू अनाउंस दिस. बहुत इंपॉर्टेंट है ये, तो पहले से बता देता हूँ जल्दी से कि भाई ऑन 5th Feb 11 बजे स्कॉलरशिप टेस्ट है. अगर अच्छा परफॉर्म किया तो 90% तक की स्कॉलरशिप मिल सकती है. यानी 10% की फीस देके आप पूरे साल पढ़ाई कर सकते हो. यू वुड बी टॉट बाय द वेरी बेस्ट इन द इंडस्ट्री. एंड फीचर्स तो हमारे कोर्स के ज़बरदस्त हैं. आई विल शो यू द फीचर्स ऑल्सो थोड़ी देर में. तो याद रखना एवरीवन, रिवाइज कर ले, रिपीट कर लें. 5th Feb 11 बजे स्कॉलरशिप टेस्ट. यू कैन गेट अप टू 90% ऑफ, 10% में पूरे साल की पढ़ाई. प्लीज़ मेक श्योर यू हैव द ऐप, यू रजिस्टर इट, यू डाउनलोड इट एंड देन यू रजिस्टर. तो अभी के अभी इस सेशन के एंड में ज़रूर कर लेना. रजिस्टर नहीं किया तो छूट जाएगा मौका. करेक्ट, मतलब घर बैठे पैसे बचा सकते हैं तो बचा लेते हैं, क्या नुकसान है ना. नाउ क्या करने वाले सेशन में. सो आई टोल्ड यू वी विल टॉक अबाउट फिलॉसफी. डोंट गेट बोर्ड अभी से. फिलॉसफी वैसे काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, बट एज आई सेड अर्लियर, पीपल डोंट रियली एन्जॉय इट बिकॉज दे आर नॉट टॉट दैट वेज. इन फैक्ट विदाउट फिलॉसफी ह्यूमन प्रोग्रेस इज़ नॉट वेरी लाइकली. जिस भी सोसाइटी में फिलॉसफी को लेके लोग बॉदर नहीं करते, वहाँ अल्टीमेटली प्रोग्रेस नहीं हो पाती है. बिकॉज फिलॉसफी मेक्स यू थिंक, आस्क क्वेश्चंस, है ना. तो लेट मी गिव यू अ वेरी सिंपल आइडिया. सपोज आई आस्क यू व्हाट इज रॉन्ग इन ईटिंग ह्यूमन बींग्स. तो आप
का पहला रिएक्शन होगा ईटिंग ह्यूमन बींग्स, यू या, बट दैट असाइड, उसको छोड़ दो. इफ आई आस्क यू टू जस्टिफाई व्हाई शुड वी नॉट ईट ह्यूमंस, तो आपको कहीं ना कहीं फिलॉसफी लानी पड़ेगी. यू विल टॉक अबाउट द डिग्निटी ऑफ अ डेड बॉडी, है ना, कि हर इंसान की एक डिग्निटी होती है, हर इंसान में एक उसका सम्मान होता है, और मरने के बाद व्हेन अ पर्सन डाइज देन द बॉडी इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सोसाइटी, और सोसाइटी की ये ड्यूटी है कि वो उसकी रक्षा करे. सोसाइटी हैज़ टू प्रोटेक्ट द डेड बॉडी, इट कैन नॉट अलाउ डेसेक्रेशन ऑफ द बॉडी और डिसरेस्पेक्ट टू द बॉडी. पर ये आता कहाँ से? ये सारी चीज़ें फिलोसफिकल ही हैं. फिलोसफी इज़ बेसिकली लव फॉर नॉलेज, सर्च फॉर नॉलेज. तो फिलोसफिकल आंसर्स आते हैं. दैट इज़ वाई व्हेन यू गो टू वन ऑफ द टॉप एनएलयूज तो आपको ज्यूरिस्प्रूडेंस पढ़ाते हैं, है ना. वैसे हमारे कोर्स में भी ज्यूरिस्प्रूडेंस को लेके काफ़ी बच्चे दुखी रहते थे, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग इफ़ यू डू नॉट अंडरस्टैंड ज्यूरिस्प्रूडेंस तो आप बहुत सारे लॉज में फंस जाओगे. फॉर एग्जाम्पल क्लोनिंग, व्हाट इज़ रॉन्ग विद क्लोनिंग? क्लोनिंग क्यों अलाउ नहीं करना चाहिए या करना चाहिए? और जेनेटिक इंजीनियरिंग ऑफ ह्यूमन बींग्स, है ना, कल को पता चले हम लोग जेनेटिक इंजीनियरिंग करने लग जाएं और ऐसे बच्चे पैदा हों who are pre-programmed. Just imagine a company makes an app and says go to the app and select qualities in a baby. आइंस्टीन का दिमाग, ब्रैड पिट के लुक्स, BTS की सिंगिंग पावर, that wouldn't be a good idea. लता मंगेशकर की आवाज़, है ना, अरिजीत सिंह की आवाज़, शाहरुख खान का सिक्स पैक. तो बच्चे ऐसे, what is wrong with that? It is not right because you are denying the same facilities, same opportunities for most of the people. Only some people would have the access to it. It's like, you know, creating unequal society. ये फिलॉसफी सिखाता है हमें. इस वजह से फिलॉसफी बहुत इंपॉर्टेंट है. वैसे ज़्यादा ज्ञान नहीं दूंगा वरना तुम भी बोर हो जाओगे और भाग जाओगे, बट आई होप एट दिस मोमेंट इतना तो समझ में आ रहा है ना कि फिलॉसफी ज़रूरी है. उसके बिना बहुत सारे क्वेश्चंस हम डिसाइड कर ही नहीं सकते. फॉर एग्जाम्पल जुवेनाइल जस्टिस, 16 साल से कम का बच्चा मर्डर कर देता है, हम उसे छोड़ देते हैं 3 साल के बाद, क्यों? और 17 साल का बच्चा करता है तो नहीं छोड़ते, क्यों? सो दीज क्वेश्चंस वेरी क्लियरली रिक्वायर फिलोसफिकल बैकग्राउंड. समझ में आ रही है बात? नहीं आ रही है तो ही बता देना वैसे, और आ रही है तो ज़रूर बताना. हरमन हेलो. इफ़ यू आर वॉचिंग मी आफ्टर द सेशन इज़ ओवर तो मुझे कमेंट में बताना कि समझ आया, मज़ा आया, नहीं आया, दुखी हो गए, खुश हो गए, वगैरह वगैरह. नाउ दिस इज़ अ फेयरली बिग पैसेज. तो मैंने क्या किया है, आई विल क्विकली टेल यू. देयर इज़ अ वेरी फेमस बुक कॉल्ड सोफीज़ वर्ल्ड. बहुत अच्छी बुक है, मैंने तो 2 बार पढ़ी है. जॉस्टिन गार्डर इसके ऑथर हैं, एंड आई स्ट्रांगली रिकमेंड कि लॉ स्कूल जाने से पहले थोड़ा बहुत तो इस बुक के बारे में आइडिया होना ही चाहिए तुम्हें. वैसे लॉ स्कूल में पढ़ाएंगे फिलॉसफी, डोंट वरी, बट थोड़ा आइडिया यहाँ से लेके जाओगे तो ज़्यादा फ़ायदा रहेगा. ओके, तो इस बुक में क्या है भाई ऐसा? सो दिस बुक इज़ अबाउट फिलॉसफी. दिस इज़ रिटन फॉर एवरेज पीपल, मतलब जो ज़्यादा फिलॉसफी वगैरह नहीं पढ़ के बैठे हैं, जिनको ज़्यादा नहीं आता है, उनके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग बुक हो सकती है. सो दिस बुक टेल्स यू द हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न फिलॉसफी, जिसके बारे में हमें जानने की ज़रूरत है, क्योंकि आप लॉ कॉलेज में भी यही पढ़ने वाले हो, और RC's पैसेजेस, क्रिटिकल रीजनिंग के पैसेजेस भी इसी से आते हैं. आई हैव क्रिएटेड दिस यूजिंग दैट बुक. आप वो बुक पढ़ोगे तो ये 300 पेज में मिलेगी. मैंने 300 वर्ड में इसको कंडेंस कर दिया. तो ऑफकोर्स इट डजंट रियली कैप्चर एवरीथिंग, बट यू गेट अ वेरी वेरी बेसिक सॉलिड आइडिया, है ना. फिर क्वेश्चन भी आने वाला है, तो इसको साथ में पढ़ते हैं. और इफ़ यू आर वॉचिंग मी आफ्टर द सेशन इज़ ओवर तो पॉज करके वहाँ पे आंसर मार्क करना, फिर आंसर चेक करना. ओके, चलो भाई, लेट्स स्टार्ट रीडिंग इट. चेक कर लूँ सबको दिख रहा है? हाँ, दिख तो रहा है, नो प्रॉब्लम. लेट्स स्टार्ट रीडिंग इट एवरीवन. चलो. वेस्टर्न फिलॉसफी हैज़ अ रिच and storied history that spans over 2000 years, dating back to the ancient Greeks. Dating back to the ancient Greeks का मतलब है, author is saying that probably Greeks were the ones who started it, probably, right? Storied basically means it has a lot of layers, it has a lot of variety. Western philosophy has a rich and full of variety history that is 2000 years old and probably started with the Greeks. It can be traced to the philosophers of the Milesian school,
such as Thales, Anaximander, Anaximenes, who sought to understand the natural world through observation and reason. शुरू कहाँ से हुआ कि दुनिया को ना ऑब्जर्व करके, नेचुरल वर्ल्ड को ऑब्जर्व करके और दिमाग लगा के, रीजन बेसिकली मीन्स लॉजिकल एबिलिटी. So they tried to understand the world by using their observation and reason. Now you would say, what is so great about it? It started 2000 years back. So that is what is great about it. Even now people don't use observation and reason. आज भी दिमाग लगाना लोग पसंद नहीं करते. हमारे चाचा जी ने कहा, हमारे ताऊ जी ने कहा तो सच ही होगा, इन बाबा जी ने कहा तो सच ही होगा, उस बुक में लिखा है तो सच ही होगा. We don't use reason even now, right? हमारे रिलीजियस बुक में लिखा है तो सच ही होगा. We don't use reason. हम दिमाग कहाँ लगाते हैं? लगाते ही नहीं है. इन लोगों ने 2000 साल पहले लगाना शुरू कर दिया था. They observed. That is why you would notice that Newton, who was basically a mathematician and a physicist, observed. जब उनके सर पे एप्पल गिरा तो उन्होंने ऑब्जर्व किया ना कि अरे ये सर पे एप्पल एक नीचे ही मेरे सर पे क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं चला गया, है ना. तो दिस इज कॉल्ड ऑब्जर्वेशन. So even 2000 years back, these guys started using observation and reason, observation and logic लगाना शुरू कर दिया था उन्होंने to understand the natural world. In Athens, Socrates was known for his method of questioning. This is a very interesting thing about Socrates. Socrates was very famous for asking questions. Now, you ask yourself, tell me, do you really think in India we promote asking questions? In your school or college तो नहीं गए होगे, स्कूल में, if you ask too many questions, were you appreciated? लोग तारीफ करते थे कि देखो कितने सवाल पूछता है, ये बड़ा अच्छा बच्चा है, बड़ा शार्प है, बड़ा दिमाग वाला है, बहुत इंटेलिजेंट है. या बोलते थे चुपचाप बैठो, ज़्यादा सवाल मत पूछो, अपने आप को क्या समझते हो, अपने आप को आइंस्टीन समझते हो. What used to happen? Let me know in the chat box everyone. क्या होता था? Let me see your response. Rajinder says no. Suryash Kumar. It's a very individual question, Suryash. How do I answer that? Depends on you, right? It can be done, of course. कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, है ना? Okay, remember guys, if you hear a little bit of noise from the outside, please ignore it. There is somebody who is, I think, going out to marry. एंड वो बहुत खुश है और वो अपने साथ बहुत सारे ढोल वोल लेके चल रहा है और काफ़ी सारे गाने बजा रहा है. इवन आई एम टेम्प्टेड टू गो आउट एंड डांस बट आई एम नॉट डूइंग दैट, सो प्लीज़ इग्नोर. हमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम करना है ना. तो सोक्रेटिस बड़ा फेमस था, वॉज वेरी फेमस फॉर हिज मेथड ऑफ क्वेश्चनिंग विच एम्ड एट गेटिंग टू द ट्रूथ ऑफ अ मैटर थ्रू डायलॉग एंड क्वेश्चनिंग. सोक्रेटिस वॉज फेमस फॉर आस्किंग क्वेश्चंस एंड हैविंग डायलॉग. सोक्रेटिस वॉज वेरी फेमस, इनफैक्ट वो क्या करते थे, वो जाके मार्केट में खड़े हो जाते थे और लोगों से पूछते थे, अच्छा हाउ डू यू नो कि ये धरती गोल है. तो कोई कहता था मैं नहीं मानता धरती गोल है, तो ही वुड से अच्छा कैसे पता कि धरती गोल नहीं है. सो पीपल स्टार्टेड कॉलिंग हिम मैड. दे वुड से क्या आदमी है यार, कैसे सवाल पूछता है. बट देन ऑफ कोर्स ही वॉज रेस्पेक्टेड ऑल्सो फॉर हिज नॉलेज, डेफिनेटली, बट ही वॉज नॉट टॉलरेटेड वेल बाय द सोसाइटी बिकॉज ही स्टार्टेड आस्किंग क्वेश्चंस, है ना. और कोई भी सवाल पूछता है तो लोग पसंद नहीं करते. Socrates was known for his student Plato wrote extensively on the ethics, politics and metaphysics. Metaphysics is what is beyond physics, or it's a part of philosophy, and was a major influence on the development of Western thought. Now pay attention everybody. Plato was very, very important for the development of Western thought. Western thought को develop करने में प्लेटो का बहुत बड़ा हाथ था, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था. प्लेटो कौन थे? एरिस्टोटल के, सोक्रेटिस के स्टूडेंट. सोक्रेटिस, प्लेटो, एंड उसके बाद एरिस्टोटल. उनके जो चेले थे वो थे एरिस्टोटल. प्लेटो के चेले एरिस्टोटल, एंड एरिस्टोटल के चेले थे अलेक्जेंडर द ग्रेट, जो इंडिया आए थे मारकाट मचाने. एरिस्टोटल, another of Plato's student, was a polymath. Polymath is a person who is expert in many fields, who made significant contributions to fields such as biology, physics and ethics. 2-3-5 चीज़ों में बड़े माहिर थे. He was basically a great logician, mathematician. In fact, he was great
he is still remembered today for biology because he introduced the concept of taxonomy. जो एनिमल्स को बांटते हैं ना अलग अलग टाइप में, उन्होंने ही इंट्रोड्यूस किया था ऑब्जर्वेशन के थ्रू. अच्छा ये स्नेक है, इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम अ फ्रॉग, फ्रॉग है ये डिफरेंट है क्रोकोडाइल से, क्रोकोडाइल तो बहुत डिफरेंट है ह्यूमन बीइंग से, ह्यूमन बीइंग बहुत डिफरेंट है हॉर्स से. सो ही क्रिएटेड दैट कैटेगरी. He emphasized the importance of observation and empirical evidence. Empirical evidence means evidence based on experiment or observation. तो एप्पल नीचे जाता है, सर पे गिरता है, इट्स एम्पेरिकल एविडेंस. आप इसको मैथ्स के थ्रू नहीं दिखा सकते, बट अगर आप एप्पल सर के ऊपर छोड़ोगे तो सर पे ही गिरेगा, है ना. तो दैट्स ऑब्जर्वेशन. एंड हिज वर्क कंटिन्यूज टू बी स्टडीड एंड डिबेटेड टू दिस डे. द हेलेनिस्टिक पीरियड सॉ द राइज ऑफ स्टोइसिज्म एंड एपिक्यूरियनिज्म, schools of philosophy that focused on ethics and the meaning of life. अब भारी भरकम काम शुरू हो गया है ना. During this time, the Great Library of Alexandria was also established, providing a wealth of knowledge and resources for future philosophers. In the Middle Ages, now see time frame change हो रहा है. Do you notice? Middle Age पे आ गए. Christian philosophers such as Augustine and Thomas Aquinas sought to reconcile faith and reason and made important contribution to the fields of ethics and metaphysics. Reconcile faith and reason means that if you look at it, people who are religious, they believe God created human beings. People who believe in science or logic, they will say no, we have evolved, right? तो अगर आप रिलीजियस हो तो आप मानते हो भगवान ने आपको पैदा किया है, अगर आप लॉजिक लगाते हो तो आप कहते हो हम तो इवॉल्व हुए हैं. तो इन दोनों में दोस्ती कैसे होगी? फिर तो जो रिलीजियस है वो लॉजिकल नहीं हो सकता, जो लॉजिकल है वो रिलीजियस नहीं हो सकता. तो इन दोनों में दोस्ती कैसे पैदा करें? ये किसने स्टडी किया, ये किसने बताया? ये थे ऑगस्टीन एंड थॉमस एक्विनस. दे ट्राइड टू रिकनसाइल फेथ एंड रीजन एंड दे मेड इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन टू द फील्ड्स ऑफ एथिक्स एंड मेटाफिजिक्स. द रेनेसांस सॉ अ रिसर्जेंस ऑफ द क्लासिकल लर्निंग एंड अ रिवाइवल ऑफ इंटरेस्ट इन क्लासिकल फिलोसफी इंक्लूडिंग द वर्क ऑफ प्लेटो एंड एरिस्टोटल. फिर जब रेनेसां आया तो क्लासिकल फिलोसफी में लोगों का इंटरेस्ट जाग गया फिर से. ओके, I hope you are able to follow till here. चलो आगे देखते हैं भाई. The Enlightenment in the 17th and 18th centuries was a time of great intellectual ferment. Ferment means intellectual activity, marked by the rise of rationalism and the scientific method. अब क्या आ गया? 17th and 18th century में लोग intellectually बहुत ज़्यादा interested हो गए, एक्टिविटी करने लगे, rationalism यानी कि logic and scientific method भी बाहर आ गया. The works of philosophers such as Descartes, Leibniz and Locke helped lay the foundation of modern Western thought and continue to be studied and discussed to this day. तो कुछ और philosophers आए like Descartes, Leibniz and Locke and इनके work को हम अभी भी study करते हैं, right? Leibniz for example was I think very instrumental in creating calculus. Mathematician थे, calculus में इनका बड़ा contribution है. And these guys are philosophers, Locke and Descartes. So इन लोगों ने क्या किया? Modern Western thought को produce किया. Throughout its history, Western philosophy has been characterized by its focus on reason. Reason means logic. Critical inquiry means thinking and asking questions, and a commitment to the pursuit of truth and knowledge. Its legacy continues to shape the way we think and understand the world, and its influence extends far beyond the realm of academia and into our everyday lives. So I hope you were able to understand the basic points made in this passage. कोई दिक्कत तो नहीं हुई? अगर हुई है तो बताओ before I show you a question, because you have to be able to manage every kind of passage, है ना. फिलोसफी पढ़ने में हो सकता है दुखी कर दे तुम्हें, बट होता है इंटरेस्टिंग है. and once you are aware of these words, I think you will be able to manage no matter what kind of passages they ask. धैर्य गौतम, हाय, गुड इवनिंग. सो यस प्लीज जल्दी बताना. शुड आई गिव यू अ क्वेश्चन? कुछ समझ आया? पल्ले पड़ा? क्वेश्चन दूं? दे दूं? ओके, चलो भाई अब लाते हैं सवाल. तो ये रहा आपके लिए पहला सवाल. आई होप यू कैन रीड इट. 4 ऑप्शंस हैं आपके सामने. क्वेश्चन है, ज़रा जल्दी से बता दो कि कौन सा इसमें से होगा करेक्ट आंसर. एंड इफ़ यू कैन हियर सम नॉइज प्लीज़ इग्नोर इट, आई कांट रियली हेल्प. बारातियों का स्वागत तो करना ही पड़ता है. तो जल्दी से बताओ करेक्ट आंसर क्या होगा.
What do you think is the answer? Let's see. Okay, let me just become a little smaller so that you guys can see the question properly. थोड़ा छोटा हो जाता हूँ, क्वेश्चन दिख जाएगा. I hope you guys can see the question now. तो मैं छोटा सा हो गया है ना? Yes please. चलो, सना का आंसर इज A. Sana says A, but I have to wait for others. Who else is there? Sana's answer is A. Anybody else would like to try? कोई और है जो बताए करेक्ट आंसर? बिफोर आई टेल यू द आंसर, मैं तो बता ही दूंगा और तुम्हें बताना पड़ेगा पहले. राजेंद्र का आंसर इज डी. एक का आंसर ए, एक का आंसर डी. ऐसा कैसे? तो ज्यादती है. बट आई विल वेट फॉर 10 मोर सेकेंड्स, है ना. एक बार देख ही लेता हूँ बाकी लोगों के आंसर्स, फिर बता दूंगा करेक्ट आंसर. कृष्णाज आंसर इज डी. प्रियाज आंसर इज बी. ओके ओके. हरमन्स आंसर इज सी. चलो भाई मैं ही बता देता हूँ करेक्ट आंसर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन सना, वेल डन, यू गॉट इट राइट, एब्सोल्युटली वेरी गुड. करेक्ट आंसर इज ऑफ कोर्स ऑप्शन ए. विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी इन्फर्ड फ्रॉम द पैसेज. पढ़ के देखो पैसेज. क्रिश्चियनिटी वॉज द डोमिनेंट रिलीजन इन द मिडिल एजेस. ये आप फिगर आउट नहीं कर पाओगे. पूरा पैसेज पढ़ के देखो. मिडिल एजेस का मतलब है आप 17-18 सेंचुरी से पहले की बात कर रहे हो, है ना. अब यहाँ पढ़ के देखो, यहाँ से यहाँ तक द मिडिल एजेस की बात यहाँ पे हुई है. बाई रीडिंग दिस कैन आई से दैट क्रिश्चियनिटी वॉज द डोमिनेंट रिलीजन इन द मिडिल ईस्ट, इन द मिडिल एजेस? कांट से दैट. ऑप्शन बी देखते हैं. एथिक्स एंड मेटाफिजिक्स आर कंसिडर्ड इंपॉर्टेंट फील्ड्स. यस, इंपॉर्टेंट है, तभी तो इन लोगों ने इस पर काम किया ना. इफ साइंटिस्ट आर वर्किंग, फिलोसफर्स आर वर्किंग ऑन समथिंग, तो वो क्या माने जाएंगे? वो तो इंपॉर्टेंट ही माने जाएंगे. एथिक्स एंड मेटाफिजिक्स इंपॉर्टेंट है क्योंकि लोगों ने इसके ऊपर काम किया. करेक्ट. द वर्क ऑफ प्लेटो एंड एरिस्टोटल वर कंसिडर्ड क्लासिकल फिलोसफी. ये तो इनफैक्ट मेंशन्ड ही है, यहाँ पे देखो लिखा है. इट सेज द रेनेसांस saw a resurgence of classical learning and a revival of interest in classical philosophy including the works of Plato and Aristotle. इंक्लूडिंग का मतलब है ये क्लासिकल फिलॉसफी का हिस्सा थे, राइट. तो ये भी ट्रू है. मॉडर्न वेस्टर्न थॉट इज बेस्ड ऑन द आइडियाज ऑफ फिलोसफर्स फ्रॉम द इनलाइटनमेंट. यहाँ लिखा है हेल्प ले द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न वेस्टर्न थॉट, है ना. तो यानी कि ए, बी, सी और डी तो हम बिल्कुल कह सकते हैं, बट ए को नहीं कह सकते. देयरफॉर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए. यस और नो? सो राजेंद्र, सना, नॉट सना, राजेंद्र, कृष्णा, प्रिया, हरमन, प्लीज लेट मी नो, इज इट understood, yes or no, before I give you another question. तो अगला सवाल बड़ा सिंपल है. अगर पैसेज पढ़ने की ज़रूरत हो तो मुझे ज़रूर टाइप करके बताना, शो मी द पैसेज और समथिंग लाइक दैट. मैं आपको पैसेज दिखाऊंगा. क्वेश्चन आपके सामने है, मैं थोड़ा वेट कर लेता हूँ. लेट्स सी व्हाट आंसर यू हैव इन माइंड, उसके बाद बात करेंगे. ओके, सो लेट मी सी. अब मैं हो जाता हूँ थोड़ा सा बड़ा, बिकॉज इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. यस, सो व्हाट्स द आंसर? हरमन, कृष्णा, राजेंद्र, सना, धैर्या, प्रिया. सना का आंसर आ गया भाई. सना का आंसर सी है, बट मेरा काम तो वेट करना है, मैं थोड़ा सा वेट कर लूँगा, नो प्रॉब्लम. प्रिया का आंसर इज ए. ओके, आई विल वेट फॉर 30 मोर सेकेंड्स, फिर बता दूंगा आंसर. अरविंद का आंसर इज ए. ओके अरविंद. सो आई हैव सी, ए, और राजेंद्र कौर's आंसर इज डी. राजेंद्र, तुमने पिछली क्लास में अच्छा किया था. इस क्लास में आई डोंट नो, तुमने पिछला क्वेश्चन सही किया? आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली. लेट्स सी. सो आई हैव सी, ए, डी. और कोई आंसर आएगा, बताएगा? लेट मी
टेल यू द करेक्ट आंसर। अब मैं आंसर बता देता हूँ, है ना। चलो भाई, काफ़ी लोग काफ़ी टाइम लगा रहे हैं। क्वेश्चन सेज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स मस्ट बी ट्रू बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन गिवन इन द पैसेज एक्सेप्ट। Means 3 options are true, 1 option is not true. Option 1, Western philosophy has a checkered history that spans over 2000 years. Checkered का मतलब होता है varied, मतलब काफ़ी चीज़ों से मिलके बना हुआ, वैरायटी से भरपूर। So the first line of the passage says that Western philosophy has a rich and storied history. Basically storied means variety है उसके अंदर काफ़ी सारे, तो first option is definitely true. Philosophers of the Milesian school were the first to try to understand the natural world. पहली लाइन में लिखा है, it can be traced to the philosophers of Milesian school who sought to understand the natural world, है ना, they were probably the first one. Correct है. Plato was a major influence on the development of Western thought, clearly लिखा है. This is mentioned. It says Plato wrote extensively and was a major influence on the development of Western thought. तो C भी बिल्कुल true है. But option D कहता है Western philosophy has been castigated. Castigated means criticized for its focus on reason, critical inquiry and commitment. अरे बाप रे, no, not at all. In fact लिखा है the legacy continues. Throughout its history, Western philosophy has been characterized. Characterized means it had been famous for having these qualities of focus on reason, critical inquiry and commitment to pursuit of truth. तो D तो बिल्कुल भी सही नहीं है, तो करेक्ट आंसर क्या हो गया? करेक्ट आंसर है D. So who got it right? Let me check now. तो करेक्ट आंसर किसने दिया भाई? राजेंद्र कौर ने अभी बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है। राजेंद्र, यू आर बैक विद अ बैंग फॉर श्योर, वेल डन, बहुत बढ़िया। और मुझे किसी के आंसर्स नहीं दिखे करेक्ट, है ना, सिर्फ एक ही आंसर करेक्ट दिखा। सो बिफोर आई मूव ऑन, लेट मी क्विकली आस्क, ये बात पल्ले पड़ी सबके कि फिलोसफिकल अगर पैसेजेस आते हैं तो थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, बट ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप क्वेश्चन भी ध्यान से पढ़ो। यू गाइज मस्ट रीड द क्वेश्चंस प्रॉपरली एंड एट द सेम टाइम यू हैव टू रीड द पैसेज भी प्रॉपरली। ऐसा नहीं कर सकते कि पैसेज पढ़ा नहीं और क्वेश्चंस कर दिए अटेम्प्ट, फिर सब गड़बड़ हो जाएगा, है ना। और क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ा तो गड़बड़ गारंटीड है। ऑलराइट, चलो भैया आगे चलें। तो अगला अभी करते थोड़ा सा क्विक अनाउंसमेंट और फिर मैं आपको क्वेश्चन देता हूं। तो याद रखना एवरीवन, जस्ट इन केस आपने लेट ज्वाइन किया है, 5 फेब 11 बजे स्कॉलरशिप टेस्ट है, जिसे देते ही 90% तक स्कॉलरशिप प्राप्त करने के चांसेस हैं। Don't miss it. In case you are thinking of joining a CLAT program, you can try this because you might end up getting a heavy scholarship which can help you save tons of money and that can be used for other purposes, है ना। तो उन पैसों से आप कुछ और कर लेना। सपोज 90% स्कॉलरशिप मिल गई तो पेरेंट्स से आप थोड़ा सा पैसा इनाम में भी ले सकते हो कि चलो हमें ही दे दो थोड़े से पैसे, हम नया मोबाइल ले लेंगे, बुक्स ले लेंगे, घूमने चले जाएंगे, समथिंग लाइक दैट। तो ज़रूर ट्राई करना। 5 Feb 11 AM 90% स्कॉलरशिप मिल सकती है, स्कॉलरशिप टेस्ट है। अब बताओ करेक्ट आंसर क्या है? इसमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा, ऑप्शंस बहुत ज़्यादा दमदार वजनदार हैं, है ना। तो भैया इसका आंसर तो मुझे वेट करना पड़ेगा। आई नो, प्लीज़ रीड इट प्रॉपरली एवरीबडी। इफ़ यू वांट टू रीड द पैसेज तो ही बताना, पैसेज भी मैं पढ़ के आपको या दिखा सकता हूँ, पढ़ तो क्या ही लूँगा, पढ़ तो चुके हैं हम, बट वी वुड रीड द पैसेज वंस अगेन, ओके। तो अगर ज़रूरत है तो बता देना, मैं आपको पैसेज भी दिखा दूंगा। सो आई एम गोइंग टू वेट इन दिस, डोंट वरी, इसमें तो थोड़ा सा टाइम तो लगेगा। चलो अरविंद का आंसर आ गया, ओके। हरमन का आंसर भी आ गया, बट आई हैव टू वेट, अभी बहुत लोग बाकी हैं। सना बाकी है, कृष्णा है, प्रिया है, राजेंद्र है, और भी नाम दिख रहे हैं। चलो प्रिया का आंसर भी आ गया भाई, प्रिया का आंसर आ गया, ओके।
बट आई हैव टू वेट, अभी तो थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ क्योंकि मुझे करेक्ट आंसर भी तो चाहिए, है ना। सो मैं वेट करूंगा 10 सेकेंड मोर, फिर आपको मैं आंसर बता दूंगा। राजेंद्र का आंसर भी आ गया है। एंड राजेंद्र, लेट मी टेल यू, यू हैव मेड अ क्लासिकल मिस्टेक, जिसकी उम्मीद थी मुझे, बट यू मेड दैट मिस्टेक। ओके, मुझे लगा था कोई ना कोई करेगा। सो यू कैन ट्राई अगेन इफ यू वांट। बता दूं आंसर? ओके, बता देता हूं। देखो, अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज लर्न करते हैं। लेट्स लर्न समथिंग इंटरेस्टिंग। दिस इज द क्लासिकल स्टाइल ऑफ आस्किंग अ मेन कंक्लूजन क्वेश्चन। आप अगर क्लैट लिखोगे, कल एलेट लिखोगे, तो पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस के अंदर यू वुड सी दिस क्लासिकल स्टाइल ऑफ आस्किंग मेन कंक्लूजन क्वेश्चन। नाउ रिमेंबर गाइस, आई कुड हैव गिवन यू वन लाइनर ऑल्सो, बट आई मेड इट लॉन्गर बिकॉज यू गाइज आर जस्ट स्टार्टिंग। अभी शुरू कर रहे हो तो मैंने थोड़े बड़े बड़े ऑप्शन बनाए। मैं आपको छोटे छोटे ऑप्शन भी दे सकता था, राइट, बट बड़े ऑप्शन में एलिमिनेशन इज ईजियर बिकॉज यू कैन फाइंड समथिंग हियर एंड देयर टू एलिमिनेट चॉइसेस। आई होप यू अंडरस्टैंड। बड़े पैराग्राफ का यही रीजन है, अदरवाइज मैं एक लाइन में इसको दे सकता था, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। So whenever you are solving a main conclusion question, please understand that main conclusion means that you have to find out what is the message the author is trying to convey, right? भाई मैसेज क्या देना चाहता है, बोलना क्या चाहता है, ये है main conclusion question. Now, first of all, let me address Rajinder. Rajinder, tell me, do you really think the passage is about the Greeks? क्या ये passage Greeks के बारे में है? Others can also answer. Please tell me, क्या ये passage Greeks के बारे में है? Greeks से तो बात शुरू होती है. It starts from Greeks. Then you have Middle Ages. Then you have Renaissance period, then you have modern Western philosophy. Greeks were just a starting point, right? Option D says the Greeks were the pioneers of Western philosophy, which has a long history. The Enlightenment. So are we talking about the Greeks? If you mark the correct answer as D, then option D is saying that Greeks were the hero of the story, but the hero of the story is Western philosophy, not Greeks. This is one big reason why very clearly option D is out, right? Now let's come to C. Christian philosophy has a rich history. Christian philosophy, Western philosophy and Christian philosophy are not same, right? In fact, the passage also mentions it. You can check it. It says, in the Middle Ages, Christian philosophers such as Augustine and Thomas Aquinas sought to reconcile. Christian philosophers. So yes, Christian philosophy was probably there, right? Christian philosophy शायद था, but is the passage about Christian philosophy? No, it's about philosophy, Western philosophy, right? So ये option भी out हो गया. Then it also talks about a generic shift in the rise of nationalism. Mark the generic shift. Enlightenment marked a generic shift or a specific shift. Generic का मतलब the normal, general. So very clearly C is also out. That means you guys probably are safe, but we still have two options, so I have to read option 1 carefully. Western philosophy can trace its roots back to the ancient Greeks and has evolved over the centuries. Yes, including the Hellenistic and Middle Ages, which saw the emergence of Stoicism, Epicureanism and Christian philosophy. Yes, Enlightenment was the most pivotal moment for the rise of rationalism and the scientific method. Most pivotal moment. I want you guys to read the paragraph and tell me, is the paragraph saying that? Please read it and tell me, is it saying that the Enlightenment was the most important moment, most pivotal moment? Please read and tell me, everybody. Find out Enlightenment, where it's written, and please read and tell me, is it saying that?
बिना एविडेंस के तो काम कर नहीं सकते ना, लॉ में जाना है, लॉ में बिना एविडेंस से काम होता ही नहीं है, तो मैं बिना एविडेंस की बात मानूंगा ही नहीं, और बात मानूंगा नहीं तो आंसर कहाँ से आएगा? सो प्लीज चेक इट एंड टेल मी, ओनली व्हेन यू टेल मी देन आई विल मूव ऑन. राजेंद्र, प्रिया, हरमन, अरविंद, सना, कृष्णा, whoever has written the answer, please tell me, is it given? क्या लगता है? दिख रहा है? तो क्लियर है ना? ऑप्शन ए में लिखा है मोस्ट पिवटल मोमेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट मोमेंट, बट पैराग्राफ तो ये कह ही नहीं रहा. इट वॉज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट मोमेंट्स, बट मोस्ट के लिए तो कंपैरिजन होना चाहिए ना. मैं बोल दूं यू आर द बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड, तो भाई कंपेयर भी तो करना पड़ेगा. इफ आई से आई एम द बेस्ट प्लेयर क्रिकेटर इन द वर्ल्ड, तो भाई लोग बोलेंगे किया क्या तुमने, रिकॉर्ड्स गए हैं. आई नीड डेटा, नो, otherwise I can't say it. Is it clear everyone? And that is why very clearly this most pivotal moment makes it wrong, not good choice. Now let's read B. The history of Western philosophy dates to the ancient Greeks, yes. Encompasses rise of Stoicism and Epicureanism, yes, as well as Oriental philosophy in the Middle Ages. The Oriental basically means Eastern. Enlightenment brought about the rise of rationalism and the scientific method. This is making no as such error, and therefore Oriental, please remember, Oriental basically means belonging to the eastern side of the world, okay, just in case you're in doubt, and therefore we are left with no choice but option B. Clear everybody? Deepali, you are a little late, but do watch the session from the beginning once I end it, okay? Clear? Now I have not received a response, so I'm not sure you guys could hear me or not. Let me know in case. So what did we learn from this session? That is very, very important. What we learned was that if we get A, we are likely to get passages on philosophy. Philosophy पे passages आएंगे, बिल्कुल आ सकते हैं, और आपको इसके लिए तैयार होना पड़ेगा. Now how do you do it? You can read basic philosophical passages from anywhere. इंटरनेट पे बहुत कुछ अवेलेबल है, बट आई डोंट वांट यू टू रीड वेरी भारी भरकम हेवी बुक्स. बेसिक फंडा आप कर सकते हो. इस पर जितने फिलोसफर्स मेंशन्ड है ना, यू कैन डू अ बेसिक रीडिंग फ्रॉम विकीपीडिया ऑल्सो. कुछ नहीं करना है, गो एंड चेक थिंग्स लाइक सोक्रेटिस, प्लेटो, एरिस्टोटल, बस इतना पढ़ लो तो भी काफ़ी हो जाता है. हेलेनिस्टिक पीरियड क्या था, स्टोइक्स कौन होते हैं, एपिक्यूरियंस कौन थे, और रेनेसां पीरियड में क्या हो रहा था, मिडिल एजेस में क्या हुआ, ऑगस्टीन एंड थॉमस एक्विनिस ने क्या बोला, या इनफैक्ट इफ यू गो इनटू रेने डेकार्ट एंड लेबनीज एंड लॉक एंड हुजो एंड कार्ल मार्क्स, तो फिर तो सब, और हीगल एंड कांट, तो सब कुछ ही कवर हो जाएगा. यू जस्ट नीड टू रीड दीज 8-10 philosophers, just introductory part from the Wikipedia. You will have a different approach. You will be able to solve passages very differently if you have the basic idea. क्योंकि देखो 99% बच्चे जो है ना, वो तो भाग जाएंगे. फिलोसफी का पैसेज देखा, आउट, वहाँ से कट लेंगे, भाग जाएंगे वहाँ से. You guys will be able to rock it if you just do the basic stuff. 10 philosophers, just read some basic stuff from Wikipedia. इतना भी काफ़ी होता है. So I hope you found the session useful, right? You guys can of course join us on any of the social media platform that we are on. और जाने से पहले याद दिला दूँ, 90% स्कॉलरशिप, 5th Feb 11 बजे पेपर है. डाउनलोड द ऐप एंड रजिस्टर एंड यू कैन टेक द स्कॉलरशिप. इतना अच्छा मौका है, मिस मत करना. एंड हमारे क्लैट 2024 के बैचेस शुरू कब के हो गए हैं. इन केस यू आर स्टिल थिंकिंग यू माइट बी अ लिटिल लेट, तो प्लीज़ डोंट मिस द चांस. I will see you again everyone. Thank you so much for joining me here. I'll take your leave. Please make sure you subscribe if you're new to the channel. If you like the content, press the like button, press the bell icon, because we keep on uploading a lot of stuff on regular basis. Spread the word. It helps us reach more number of students. So ये करके जाना, that keeps us motivated also. Thank you so much everyone. Thank you so much for joining me here. Please take care. Bye bye. Thank you so much.